Hello everyone. In last class we have discussed about Coulomb's law, vector form of Coulomb's law and principle of superposition. Some examples also we have solved in last classes. Now we are going to solve another examples of our textbook from chapter first, which is electric field, right? Then start with example number 1.4, which is the distance between electron and proton in hydrogen atom is 5.3 into 10 to power minus 11 meter. Calculate the force of attraction between them. Compare the electric force with gravitational force. ठीक है, तो दो पार्ट है इसके क्वेश्चन के, सॉल्व करते हैं अपन. देखिए, एक हाइड्रोजन एटम की बात करें तो एक प्रोटॉन है इसके अंदर और एक इलेक्ट्रॉन है. इनके बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है विच इज़ 5.3 into 10 to power minus 11 meter. Now if we calculate the electric force then F E जो हो जाएगा वो हो जाएगा K Q1 Q2 upon R square, right? There we have to remember that the value of K is 9 into 10 to power 9 into Q1, charge of electron. Charge of electron is 1.6 into 10 to power minus 19 coulomb, and charge of proton is also 1.6 into 10 to power minus 19 coulomb, and R square 5.3 into 10 to power minus 11 square, right? This would be 9 into 1.6 into 1.6 into 10 to power minus 38 minus 9 10 to power minus का 29 डिवाइड बाय 5.3 into 5.3 into 10 to power minus 22. If we solve this value then it outcomes 8.2 into 10 to power minus 8 Newton, and the force will be attraction nature, right? In second part the question is that compare the electric force with gravitational force, so we have to also calculate gravitational force also. So Fg जो हो जाएगा वो हो जाएगा G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर. देन Fg जी की वैल्यू जो है 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11, राइट. m1 मास ऑफ प्रोटॉन जो है 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 डिवाइड बाय R स्क्वायर मीन्स 5.3 इंटू 5.3 multiply by 10 to power minus 22. Distance same है. If we solve this value then it outcomes gravitational force की जो वैल्यू आती है वो आती है 3.6 into 10 to power minus 47 Newton. Now the ratio of electric force and gravitational force would be 8.2 into 10 to power minus 8 Newton divided by 3.6 into 10 to power minus 47 Newton. ये न्यूटन से न्यूटन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एफ ई अपॉन एफ जी जो होगा वो होगा इसका रेशियो जो सोल्व करने पे देखिए अप्रोक्सीमेट 47 ऊपर चला जाएगा प्लस का 47, ये आएगा 2.27 इंटू 10 टू पावर 39, अप्रोक्सीमेट 10 टू पावर 40 के आसपास ये रेशियो आता है. ठीक है, बिल्कुल. Our next question is example number 1.5 and the question is when the distance between two equally charged positive ions is 5 angstrom. क्वेश्चन ये है कि हमारे पास दो पॉजिटिव आयंस हैं और इनके बीच की सेपरेशन डिस्टेंस जो है
5 एंगस्ट्रॉम यानी कि 5 इंटू 10⁻10 मीटर. नाउ they repel each by force of 3.7 into 10⁻⁻9 न्यूटन. इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स जो वर्क कर रहा है 3.7 इंटू 10⁻�9 न्यूटन. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर डिफिशियंट फ्रॉम नॉर्मल स्टेट. इनको पॉजिटिव आयंस बनाया यानी कि इनमें इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी हुई है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द आयन वी हैव टू कैलकुलेट, राइट. सो by Coulomb's law, F equal to K Q1 Q2 upon R square, right. Both are equal charge, so Q1 की जगह भी Q आएगा और Q2 की जगह भी Q. F की वैल्यू हम पुट करें यहाँ से 3.7 इंटू 10⁻⁹ इक्वल टू K 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q स्क्वायर डिवाइड बाई 5 into 10⁻10 is to square, right. So we have to calculate value of Q square. So Q square would be equal to 3.7 into 10⁻9 multiply by 25 into 10⁻20 divide by 9 into 10⁻9. Then Q value of Q would be, देखिए 25 का रूट 5, 9 का रूट 3, ये हो गया 10⁻38. 9 ऊपर चला जाएगा 18 और इसका रूट 10⁻38 का रूट आया 10⁻19 एंड एक वैल्यू बच गई हमारे पास 3.7 का रूट जो होगा वो आएगा 1.92. इफ वी solve this value then Q outcomes 3.2 into 10⁻19 कूलम. ये Q वैल्यू आ गई. वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन. सो Q इक्वल टू NE, तो N की वैल्यू हो जाएगी Q अपॉन E और आप देख सकते हैं 3.2 इंटू 10⁻19 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19. सो N की वैल्यू जो मिलती है हमें वो 2 मिलती है. कहने का मतलब हर एक आयन पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जांपल नंबर 1.6 एंड द क्वेश्चन इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इन वैक्यूम इज 18 न्यूटन. इफ अ डाइलेक्ट्रिक प्लेट ऑफ thickness 1 mm and dielectric constant 6 is placed between the charges, then what would be the force between them. ठीक है, तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है. पहले क्वेश्चन को समझिए. क्या है कि इन दोनों को 2 चार्जेस हैं हमारे पास Q1 और Q2. इन दोनों को एक दूसरे से R सेपरेशन डिस्टेंस पे रखकर जब वैक्यूम में रखा गया तो इनके बीच में फोर्स जो आया F वैक्यूम वो आया 18 न्यूटन. और इन्हीं चार्जेस को जब किसी एप्सिलॉन आर जो है वो 6 यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 के किसी मीडियम में इनको प्लेस किया गया, तब इनके बीच में जो फोर्स आया वो आपको कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो वैसे मैंने टॉपिक में क्लियर भी कर दिया इस चीज़ को पहले भी, और अभी भी अलग से देख लेंगे. मैं सबसे पहले इसको सोल्व कर दूं. तो हमें पता है एप्सिलॉन आर जो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो होता है एफ वैक्यूम अपॉन F medium, right. So F medium would be equal to F vacuum upon epsilon r. So F medium would be equal to F vacuum की वैल्यू दे रखी है 18 और epsilon r is 6. So new force would be 3 Newton, which is very easy. बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है. इसका एक अल्टरनेटिव मेथड कि आपको इन केस अगर आपको याद ना रहे कि एप्सिलॉन आर क्या होता है, दिमाग से निकल जाए, तो अपन इसको दूसरी तरह से भी कर सकते हैं सॉल्व. वो भी मैं आपको बता देता हूँ. एज वी नो एफ वैक्यूम जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, राइट. और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है 18 न्यूटन. एफ मीडियम जो हो जाएगा
हो जाएगा 1/4π Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एप्साइलन की जगह मैं एप्साइलन नॉट एप्साइलन आर रख सकता हूँ, राइट। तो एफ मीडियम को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/एप्साइलन आर इंटू 1/4π नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे 1/4π नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 18 है। सो एफ मीडियम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 18 डिवाइड बाई एप्साइलन आर, और एप्साइलन आर की वैल्यू कितनी है 6। सो एफ मीडियम जो आएगा वो 3 न्यूटन। बिल्कुल सिंपल। So these are the solved examples of our textbook till example number 1.6. In next classes we will solve remaining examples and numericals with MCQs, right?